Good morning, students. Today we are starting the new module, okay? Water resource engineering, which is your hydrograph, okay? And this topic is very much important both for your GATE purpose, GATE exam, as well as for the semester and other exam purpose also, government exam purpose also. Many questions will come from this topic, okay? So first, we will see the topic itself is what? Hydrograph. That means we will learn to draw a graph. Okay, we will see what is the purpose of that graph, how we will draw that graph, and what is the necessity of this hydrograph. Okay. So we learn the necessity of hydrograph. Then we will see what do you understand by the hydrograph. There are other terminologies also which we must have an idea, okay, which will be required in solving problems related to hydrograph. So the terms are what? A runoff. What are the types of the runoffs? Okay, we can say what are the classification of the runoff. There are two types of the hydrograph. One is your flood hydrograph, or we can say it is the total hydrograph, and the second is the direct runoff hydrograph. Okay. And we will see what is the relationship of this hydrographs, direct runoff hydrograph or flood hydrograph. Okay, and one more term is their base flow. Now, components. After that, we will see what is the component of the hydrograph. See, we will see a graph, okay, and in that graph it is composed of several elements. So we will see what are those elements, and lastly what we will see, factors affecting hydrograph, on which factor the hydrograph curve will depend. Okay, it may vary with respect to many reasons. So what are those factors that we will see? So first, let us see why we need this hydrograph. Basically, it is mainly used for determining the maximum discharge. From hydrograph, we will see what is the maximum discharge of a river or of a stream or of a channel. Okay. Now, where does it require? Where this maximum discharge value is required? Mainly, it is required in the design of your hydraulic structures. Okay, the hydraulic structures like dam, barrage, breeze, spillway. Okay, so in these cases it is designed for certain period, which is the design life, and this design life mainly depends upon how for what should be the design life of a particular hydraulic structure. It depends upon the maximum capacity of the water that it can hold. Okay, so depending upon this maximum discharge, we have to design this kind of structures. So in order to determine this maximum capacity, what is the maximum discharge? Okay, we use this one method, which is the hydrograph method. There are several other methods also, but hydrograph is also can be used for determining this maximum discharge of a stream. Okay, so main motto is to determine the QP. We can denote that maximum discharge as the QP. Q is for discharge and peak maximum value or peak value. That's why it is written as Q suffix P. Say this is the catchment area. I think you have already gone through our first class of our this one, water resource engineering. There we have seen that what do you understand by the catchment area. All right, this is basically known as catchment area or watershed or basin. Basin means what? All the waters that will be stored in this area, okay, and they are collected from this area to the stream rivers. See here, rainfall is occurring now. This water is being distributed from several places inside this catchment area and have joined together to form a stream.
which is again see connected with the dam. In this case here we are seeing, we are using this for designing of the dam. So here I have shown that one dam structure is there. So we have to determine the capacity. Okay, what is the discharge, maximum discharge of this stream. So for that we must have idea about the catchment. Now depending upon these catchment features, say for example the area, what is the slope of the catchment, okay, what is the shape of the catchment, your this capacity or the maximum discharge may vary. Okay, if the maximum discharge vary means what, your hydrograph will also vary. So we must have idea about the catchment area also. So this top portion with higher elevation is known as the ridges. Okay, these are the ridge of the catchment area. These are the tributaries and this is the main stream. Okay, and here we will conduct the experiment which is for determining the discharge. Okay, that means this is known as the gauging station, the station where we will conduct the experiment or we will collect discharge. Okay, what is the discharge of this stream at that particular location? That location is known as the gauging station or the gauging point. Okay, so this is the catchment area. In future, in later slide, we will see what are the factors that will affect this hydrograph. One of the important factor is this, your catchment area. What is the condition, factors controlling this catchment area? What are the different parameters of this catchment area will also affect the hydrograph. Okay. Now see what, as I said, there are several methods: rational method, empirical method, flood frequency method, and hydrograph method. These are the methods which are used for obtaining the maximum discharge. Okay, but we will learn only the hydrograph method in this lecture. Now how this hydrograph looks like. Okay, we will see how it looks like. Say for example, this is your catchment area, rainfall is occurring. Okay, then slowly what happens here, water will start to flow. Okay, start to collect from different areas, then they will join together and they will ultimately, these are the tributaries, distributaries, and this is the main channel. Okay, the main channel. Okay, so they all will be collected, they all will join together and form distributaries, then from tributaries, then ultimately enters to the main channel. Okay, suppose we are conducting that experiment, that means you are staying here, you are standing here and collecting the discharge value. That means what, discharge is what, Qmax, which is meter cube per second. Okay, you are collecting data of what, discharge value with respect to time. Okay, now tell me, initially before rainfall starts, okay, before rainfall start, what should be the discharge? It will be minimum or it will be maximum? जैसे कि अगर तुम बारिश स्टार्ट होने से पहले यू आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट. ओके, so at that time discharge or flow, we can say discharge or flow of the stream क्या होगा, ज्यादा होगा ना कम होगा? मिनिमम होगा. मिनिमम, राइट. नाउ स्लोली योर रेनफॉल ऑकर्स, राइट. तो क्या हो रहा है, बारिश होते होते पानी का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे. सो this amount of the water which will join together, what happens, वो slowly increase करेगा. So if the volume is increased, ultimately your flow will increase. So slowly what happens, your flow will start to increase. Okay, लेकिन ये increase होता ही जाएगा नहीं, it will increase in a certain rate. एक मैक्सिमम डिस्चार्ज तक पहुंच जाएगा कि कितना, क्योंकि बारिश इट इज नॉट ऑकरिंग थ्रू आउट, मतलब कंटिन्यूस ऐसा बारिश अगर होता रहेगा तब वो एकदम ऊपर डिस्चार्ज भी तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा. बट बारिश इट विल नॉट ऑकर फॉर कंटिन्यूस टाइम, राइट. इट विल ड्यूरेशन, इट विल ऑकर फॉर सर्टेन ड्यूरेशन. से फॉर एग्जांपल जैसे ये है इंटेंसिटी. See, this is the intensity of the rainfall. मतलब कि फर्स्ट आवर में इतना रेनफॉल हुआ, सेकेंड आवर में इतना, फिर ये मैक्सिमम थर्ड आवर में मैक्सिमम कुछ हुआ है. ठीक है, फोर्थ आवर में फिर रिड्यूस होता जाएगा. मतलब रिड्यूस, बारिश तो थ्रू आउट द डे ऐसा होता नहीं है, कभी कभी तुम्हारे सीजन में होता है, लेकिन कुछ घंटे के लिए होता है, लेकिन एक टाइम में बहुत पीक रेनफॉल होता है. ओके, सो ऐसे हो जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इंटेंसिटी इज वेरिंग लाइक दिस. जैसे जैसे इंटेंसिटी वेरी करेगा तुम्हारा डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, एंड दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल. ओके,
और तुम्हारा डिस्चार्ज विल ऑल्सो स्टार्ट टू सी, यहाँ से पहले एक मिनिमम डिस्चार्ज विल बी देयर, स्ट्रीम में एक मिनिमम फ्लो रहता है, ओके ऐसा नहीं कि यहाँ पे पानी फ्लो ही नहीं कर रहा है, ओके बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द रेनफॉल कुछ एक मिनिमम फ्लो रहता है, दैट फ्लो इज नोन एज द बेस फ्लो, एंड ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्लो, इनिशियली तो ग्राउंड वाटर तो रह रहा है ना, तो ग्राउंड वाटर का भी तो एक फ्लो होता है, राइट, सो दैट ग्राउंड वाटर फ्लो विल गिव सम इनिशियल डिस्चार्ज वैल्यू, ओके तो इनिशियली देखो ये कुछ एक वैल्यू है, डिस्चार्ज का वैल्यू जीरो से एकदम स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ ऑलरेडी है, इन द स्ट्रीम देयर विल बी मिनिमम डिस्चार्ज फ्लो एक होता है, ठीक है, अब जैसे बारिश बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है तुम्हारा, ये डिस्चार्ज अब बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, सी बढ़ता गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बढ़ता गया तो एक पीक आएगा, पीक तक पहुंचेगा, फिर स्लोली क्या होगा, बारिश खत्म हो जा रहा, मतलब क्या है तुम्हारा फ्लो और ऐड नहीं हो रहा, बारिश ऊपर से पानी नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, ओवरलैंड फ्लो भी कम हो जा रहा है, ओवरलैंड फ्लो मतलब ये जो पानी है, बारिश का पानी जो लैंड में फ्लो कर रहा है, ओके तो लैंड में जो बारिश का पानी फ्लो करेगा वो भी कम होता जाएगा, तो यहाँ पे पहुंच के क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, उसका जो इनिशियल जो मिनिमम है वो था, मिनिमम फ्लो जो था स्ट्रीम में, दैट इज द बेस फ्लो, ठीक है, वहां तक वो पहुंच जाएगा, एंड दैट पीक, इसको ही हमको चाहिए कि ये पीक डिस्चार्ज कितना होता है इन दिस स्ट्रीम, यही वी हैव टू कैलकुलेट ओनली, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इज द हाइड्रोग्राफ, ओके सो हाइड्रोग्राफ इज बेसिकली डिस्चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ वी हैव टू एस्टिमेट व्हाट इज द QP, if it is denoted by Q then this is the peak, so QP, okay, एंड द टाइम मतलब कि ड्यूरेशन तुम्हारा बारिश का कोई भी एक मिड पॉइंट से लेकर ये कहाँ पे किस टाइम पे तुम्हारा एट विच टाइम इट हैज रीच द मैक्सिमम डिस्चार्ज, दैट टाइम इज नोन एज द लैग टाइम, ओके एंड दिस फ्लो, ये जो डिस्चार्ज है यहाँ पे देखो, दिस इज कांस्टेंट डिस्चार्ज, ये ठीक है, मिनिमम डिस्चार्ज दैट इज द बेस फ्लो, ओके सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोग्राफ. In next lecture or in upcoming lectures we will see what are the different components also, okay तो ये basically ऐसा ग्राफ होता है, okay so यहाँ से now what are the different other things that we can calculate, ये जो ग्राफ है इससे हमको बाकी का और क्या क्या मिल सकता है, एक है कि डिस्चार्ज मैक्सिमम क्या है वो मिल सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब रन ऑफ में हो जा रहा है, कितना रन ऑफ क्रिएट हो रहा है, रन ऑफ मतलब सरफेस रन ऑफ, ओके मेनली यहाँ पे रन ऑफ मतलब है सरफेस रन ऑफ, मतलब कि तुम्हारा विच विल गिव राइज टू फ्लड, अगर सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, फ्लड जनरेट होता है, सो हमको वो फ्लड फोरकास्टिंग इन सब में भी वी हैव टू determine what is the surface runoff, okay what is the volume of the surface runoff that we have to determine, or we can say that is the excess runoff को हम लोग excess rainfall भी बोल सकते हैं, as we know that जैसे बारिश होता है क्या होता है, कुछ इसका due to evaporation उड़ जाता है, कुछ इसके अंदर infiltration होता है, कुछ interception होता है, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद बाकी का जो फ्लो होके जाता है वही सरफेस रनऑफ है, तो जितना ज्यादा सरफेस रनऑफ होगा मतलब क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होता जाएगा, तो उसका फ्लड में ऑकर फ्लड बिकॉज ऑफ द एक्सेस रेनफॉल, ठीक है, सो एक्सेस रेनफॉल यूनिट इज इन सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रन ऑफ इट विल बी इन योर वॉल्यूम, मीटर क्यूब में भी हो सकता है, ओके सो ये है तुम्हारा एक्सेस रन ऑफ और रेनफॉल के बीच का यही है रिलेशन, ओके so see now how we will conduct this experiment, okay ये experiment कैसे conduct है, what is the hydrograph, it is the curve which shows relationship between discharge and time of any of a stream, any kind of stream at a particular point, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक रिवर है जा रहा है, फ्लो हो रहा है पानी, तो एक पॉइंट ले रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं, तो उस सेक्शन में तुम्हारा डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या होगा, उस सेक्शन से जो पानी फ्लो होगा इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, व्हाट इज द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, दैट इज द हाइड्रोग्राफ, ओके
तो ये है डिस्चार्ज, y एक्सिस इज गिविंग यू डिस्चार्ज, x एक्सिस इज योर टाइम। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा इंटेंसिटी इट वाज वेरी, अभी स्लो कम इंटेंसिटी है, ज्यादा है, फिर थोड़ा ज्यादा है, कम होता जा रहा है, राइट। बारिश का इंटेंसिटी पहले बहुत बढ़ेगा फिर कम होगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे फॉर क्या बोलते हैं एनालिसिस, वी हैव कंसिडर, वी हैव कन्वर्टेड दैट जो मल्टीपल इंटेंसिटी जो था उसको हम लोग एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी में एज्यूम करेंगे। ओके, हाइड्रोग्राफ में जनरली दैट इंटेंसिटी इज कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ओके, जैसे देखो ये सबका इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, इतना ड्यूरेशन था, सपोज 1 आवर में भी उतना इंटेंसिटी है, सेकेंड आवर में भी उतना ही है, मतलब कंफर्म ये वाला ये तुम्हारा ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ओके, सबका इंटेंसिटी एवरी आवर में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज सेम, ठीक है। तो ऐसा जब कर रहे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है जैसे जैसे रेनफॉल। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट this time is actually the base time of the hydrograph, and this time is the duration of the rainfall. Okay, and it is denoted by d hours हम लोग बोलते हैं। अगर 2 hours रेनफॉल है तो 2 यहाँ पे रहेगा, या 1 hour है तो 1 रहेगा, 3 है तो यहाँ पे 3 hours रहता है, ठीक है। so this is basically the duration of the rainfall, ठीक है। and this is the टाइम ऑफ रीडिंग, मतलब कि कब तुम्हारा ये यहाँ से स्टार्ट किया, कब जाके ये फिर से बेस फ्लो में रीच करेगा फ्लो, ये जो डिस्चार्ज है बढ़ रहा है ऐसे करके, कब जाके ये फिर से मिनिमम में पहुंचेगा। so that time is the base time which is denoted by TB, and remember this TB is always greater than this D. okay, बारिश शायद 1-2 घंटा के लिए होता है, लेकिन फ्लो इनिशियल जहां से जिस पॉइंट में था, मतलब जिस वैल्यू में था, अब जिस आफ्टर सर्टेन टाइम जिस वैल्यू में पहुंचेगा, दैट टाइम ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन योर ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। आई विल शो यू वन वीडियो, तो एक वीडियो देखोगे तो इट विल बी मोर क्लियर कि बारिश खत्म हो चुका है लेकिन फ्लो आ रहा है, फ्लो का रीडिंग वी आर कलेक्टिंग। ओके, सो दिस ये जो पोर्शन है देखो ये जो कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज इज राइजिंग, राइट, डिस्चार्ज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम मिनिमम टू पीक। सो दिस पोर्शन इज नोन एज द राइजिंग लीन ऑफ द हाइड्रोग्राफ, राइज कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द पीक पोर्शन। नाउ अब जहां पे तुम्हारा देखो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से तुम्हारा कर्व चेंज हो रहा है, कर्व का वो वाला चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे जाके ऐसे कर्व का चेंज, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो ये वाला क्या हो रहा है, दिस इज योर रिड्यूसिंग, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द फॉलिंग लीन। ओके, तो ये है राइजिंग लीन यहाँ तक, फिर दिस इज फॉलिंग लीन, या दिस इज क्रेस्ट और पीक, ठीक है। एंड द लैग टाइम इज व्हाट, पीक कब हो रहा है, पीक डिस्चार्ज कब हो रहा है, एंड दी तुम्हारा क्या बोलते हैं ड्यूरेशन जब सेंटर में था, ड्यूरेशन का जब मतलब बीच में था, जब बारिश हो रहा था उसका कोई भी एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम दैट ड्यूरेशन टिल द when your discharge will become maximum, that time is known as the lag time. Okay, अच्छा ये ग्राफ क्लियर है ना सबको। एंड दिस मिनिमम फ्लो, जो कि रिवर में तो कुछ फ्लो रहेगा ही, ये तो ऐसा नहीं कि पूरा सूख जाएगा, कुछ फ्लो रहेगा, दैट फ्लो इज द बेस फ्लो। ओके, एंड दैट बेस फ्लो इज बेसिकली ड्यू टू द अंडरग्राउंड सरफेस, जो सरफेस सब सरफेस फ्लो है उसकी वजह से होता है। ओके मैम, डी आवर टेबल बोल मैम, कौनटा डी आवर, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, मतलब कि तुम्हारा बारिश 2 घंटा हुआ है, लेकिन हम लोग जो रीडिंग ले रहे हैं इट मे बी मोर देन 2 आवर्स। ओके, मतलब मोर देन 2 आवर्स का रीडिंग हम लोग लेते हैं। ओके, जैसे कि 4 आवर्स 6 आवर्स भी हो सकता है ये वाला। तुम्हारा फ्लो स्टार्ट हुआ कब, फिर से ये मिनिमम में पहुंचा, इट में टेक मोर देन दिस डी आवर्स, एंड डी आवर के लिए बारिश हुआ। ओके ओके मैम, okay, the run तुम्हारा एरिया है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बारिश का पानी यहाँ से आके ये वाला है स्ट्रीम या रिवर। ओके, रिवर। अब तो क्या हो जाएगा, कुछ कुछ तुम्हारा अंदर जाएगा, कुछ कुछ तुम्हारा पेनिट्रेशन होगा, कुछ इवापोरेशन हो जाएगा, और रिमेनिंग इट विल फ्लो एज अ
सरफेस रन ऑफ, ओके, ये ऐड हो जा रहा है, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्टली गेटिंग इन एडेड टू द रिवर, मतलब फ्लो में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। सो डायरेक्ट रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। अब देखो कुछ कुछ इसका पानी का प्रेसिपिटेशन का समथिंग विल मतलब कुछ पोर्शन, पार्ट ऑफ द पोर्शन विल पेनिट्रेट इनसाइड, देन इट विल जॉइन द रिवर और द स्ट्रीम एज अ सीपेज फ्लो, या इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफेस फ्लो, ओके। प्रॉम्प्ट इंटरफेस का मतलब है कि ये क्या होगा, जब बारिश हो रहा है ये तुरंत ऐड हो जा रहा है, उसी टाइम में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कब ऐड हो रहा है, से फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, ये वाला मतलब कुछ टाइम के बाद ये ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है इसके साथ, ठीक है, उसी दिन। अब दूसरा है कि कुछ कुछ और डीप पर्कुलेशन होके दे विल गो इनटू दी, दे विल कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है, और अंदर की तरफ जाके और परमिएबल हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डीप पर्कुलेशन होके ग्राउंड जो वाटर है उसमें ऐड हो जाएगा, एंड दैट ग्राउंड वाटर विल स्लोली मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट करेगा, स्लोली दे विल गेट इन एडेड विद द रिवर आफ्टर फ्यू मोर इयर्स, क्या बोलते हैं, और थोड़ा और देर टाइम के बाद, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स। ये वाला क्या है, देखो ये वाला तुरंत उसी जिस दिन बारिश हो रहा है उसी दिन ये ऐड हो रहा है। ये वाला सपोज बारिश खत्म होके 2-3 घंटा के बाद फ्लो होके सरफेस फ्लो होके ऐड हो रहा है, और ये वाला कब ऐड होगा, आफ्टर से फॉर 2-3 मंथ्स, ठीक है, होगा। अब ये 2-3 मंथ्स होके होके यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐसा स्लोली एडिशन हो रहा है। और ये वाला क्या हो रहा है, तुरंत ऐड हो जा रहा है, ऐड होके खत्म हो जाएगा सरफेस वाला, और ये वाला स्लोली ऐड होगा मतलब लेकिन उसी टाइम में आफ्टर 2 to 3 आवर्स, और ये वाला है आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, ये स्लोली स्लोली ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रन ऑफ। तो रन ऑफ को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो एक है कि सरफेस रन ऑफ है, एंड 2 टाइप्स, ये दोनों अंदर से ऐड हो रहा है, राइट। सो सब सरफेस रन ऑफ, रन ऑफ क्यों बोले, बिकॉज दे आर एडिंग इनटू द रिवर स्ट्रीम, राइट, तो ये स्ट्रीम में ऐड हो जा रहा है। सो रन ऑफ एक है सरफेस, सब सरफेस में 2 है, एक है प्रॉम्प्ट, एक है बेस फ्लो। दिस बेस फ्लो ही हम जो बोल रहे थे ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है, इसी को ही बोल रहे हैं, दिस इज द बेस फ्लो, ओके। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या है, सो इट इज द पार्ट ऑफ द रन ऑफ दैट मीट द स्प्रिंग इन सम टाइम, मतलब ये मतलब सम मतलब ये कि लेस टाइम, एकदम तुरंत जो ऐड हो जाएगा, सम टाइम मतलब यहाँ पे लेस टाइम, ठीक है, फ्यू टाइम में अंदर ही ये ऐड हो जा रहा है, ओके। तो कैन वी से दैट डायरेक्ट रन ऑफ इज इक्वल्स टू सरफेस रन ऑफ प्लस प्रॉम्प्ट इंटरफेस, जैसे ये तुरंत ऐड हो जा रहा है और ये भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर में यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। सो डायरेक्ट रन ऑफ हम इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं कि जो those who are adding inside those who are joining or meeting the stream in some time, okay, मतलब थोड़ा टाइम के अंदर ही ये लोग ऐड हो जा रहा है दोनों ही, ठीक है, लेकिन ये वाला बहुत देर के बाद ऐड होगा आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ कंप्राइजेस ऑफ दिस सरफेस रन ऑफ एंड द सीपेज फ्लो और द प्रॉम्प्ट इंटरफेस। तो यहाँ से हम लोग वेयर एज ये जो इसका जो वॉल्यूम इस सरफेस रन ऑफ से जो वॉल्यूम ऐड हो रहा है इट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर्ड टू दिस सीपेज फ्लो, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट इंटरफेस से होकर जो रन ऑफ यहाँ पे ऐड हो रहा है दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट कंपेयर टू दिस सरफेस फ्लो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रन ऑफ इज इक्वल्स टू एक्चुअली सरफेस रन ऑफ ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ओके, सिंस दिस प्रॉम्प्ट इज वेरी वेरी लेस इन अमाउंट कंपेयर टू द सरफेस रन ऑफ। सो डायरेक्ट रन ऑफ इज इक्वल्स टू व्हाट, वी कैन एज्यूम इट एज सरफेस रन ऑफ को हम लोग पूरा डायरेक्ट रन ऑफ ले सकते हैं, ओके। नाउ कम्स, ये तो डायरेक्ट रन ऑफ हो गया है, तो बेस फ्लो क्या है अब, ठीक है। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ द रन ऑफ व्हिच विल मीट द स्प्रिंग आफ्टर अ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, जैसे कि है कि वहां पर था 2-3 घंटे के बाद या तुरंत ऐड हो रहा है, whereas बेस फ्लो विल बी एडेड आफ्टर 2 to 3 मंथ्स या 8 मंथ्स भी हो सकता है। जैसे अभी रेनी सीजन जब होता है उसके 2-3 महीने के बाद भी वो स्लोली मतलब विद इन दैट मंथ वो ऐड होता जा रहा है, स्लोली ऐड हो रहा है, ठीक है। आफ्टर द मानसून सीजन ऑल्सो दे आर एडिंग, ओके। सो दिस इज द बेस फ्लो, ठीक है। सो टोटल रन ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल रन ऑफ देखो एवरीथिंग इज एडिंग इनटू द स्ट्रीम ओनली, तो ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है,
ये दोनों है तुम्हारा डायरेक्ट रन ऑफ, क्योंकि ये लोग तुरंत ऐड हो रहा है, whereas ये स्लोली हो रहा है, तो ये वाला बेस फ्लो अलग से रन ऑफ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ओके, एंड सिंस ये वाला वॉल्यूम इज लेस कंपेयर, वेरी मच लेस कंपेयर टू द सरफेस, तो हम लोग जो डायरेक्ट को हम बोल सकते हैं कि सरफेस रन ऑफ इटसेल्फ इज द डायरेक्ट रन ऑफ. ठीक है, अब तो टोटल रन ऑफ क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिलाकर ही होना चाहिए था, राइट, दैट इज द सरफेस प्लस दिस. ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट प्लस बेस फ्लो. ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है, देखो, तो डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो इज द टोटल रन ऑफ. ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायरेक्ट रन ऑफ इज व्हाट, टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो. ठीक है, मतलब कि टोटल है ये सब फ्लो माइनस अगर बेस फ्लो कर देंगे तो हम लोग का ये डायरेक्ट रन ऑफ आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप. क्लियर, ये रिलेशनशिप काम में आएगा. ओके, सो डायरेक्ट रन ऑफ इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव टू यूज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाकी जो लेक्चर आने वाला उसमें. तो नाउ कम्स व्हाट इज हाइड्रोग्राफ. अब हाइड्रोग्राफ हम बोले थे इट इज द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, अब एक है फ्लड हाइड्रोग्राफ या टोटल हाइड्रोग्राफ हम लोग जो बोल सकते हैं, और एक है सिर्फ रन ऑफ का हाइड्रोग्राफ विच इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ओके, सो द फ्लड हाइड्रोग्राफ इज व्हाट, इट इज द हाइड्रोग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द टोटल रन ऑफ. ठीक है, ये जो टोटल रन ऑफ है इसका करस्पॉन्डिंग जो फ्लो होगा, मतलब कि ये तीनों फ्लो मिलाकर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर में डिस्चार्ज बढ़ रहा है, राइट, फ्लो बढ़ रहा है. नाउ फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टोटल रन ऑफ का, टोटल रन ऑफ के लिए जो फ्लो हो रहा है वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ बनाएंगे, दैट इज द फ्लड हाइड्रोग्राफ. ओके, एंड द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मतलब है कि सिर्फ जो सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ से जो तुम्हारा ऐड होके जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लो, मतलब ओनली दिस सरफेस रन ऑफ ऐड होके जो वॉल्यूम इंक्रीज होके जो फ्लो इंक्रीज होगा रिवर में. ठीक है, सिर्फ सरफेस रन ऑफ को मिलाकर जो फ्लो में चेंजेस आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. एंड इफ ये तीनों या ये दोनों ही ऐड करके जो रिवर में फ्लो में चेंजेस आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द टोटल हाइड्रोग्राफ. ओके, या फ्लड हाइड्रोग्राफ हम लोग बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? फ्लड मतलब है कि तीनों फ्लो को मिलाकर ही जो ग्राफ बनेगा, दैट इज द फ्लड हाइड्रोग्राफ. एंड डायरेक्ट रन ऑफ, ओनली रन ऑफ, जो सरफेस रन ऑफ है उसको मिलाकर ही, सिर्फ अगर उसको उसके ऐड होने की वजह से रिवर स्ट्रीम में जो फ्लो का वेरिएशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, that is the direct run of hydrograph. And this is the relation that we have derived. Direct run of hydrograph is nothing but the total minus base flow, right? जो तीन ठो फ्लो जो था उसमें से बेस फ्लो माइनस कर दो तो we will get the direct runoff. Okay, now tell me what is the graph that will be plot using direct runoff values. उसको क्या बोलेंगे, उस हाइड्रोग्राफ को क्या बोलेंगे अगर डायरेक्ट रन ऑफ की वजह से जो हाइड्रोग्राफ प्लॉट करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ देन? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. यस, व्हिच इज DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ठीक है, एंड दिस इज द टोटल रन ऑफ, मतलब तीनों मिलाकर जो फ्लो में चेंजेस होगा, दैट इज द फ्लड हाइड्रोग्राफ, FH. ओके, सो यहाँ से वी कैन substitute and we can say that DRH is FH minus base flow. ओके, तो यहाँ से हम लोग का ये इन फ्यूचर में ये वाला फंडा याद करना है, ये मतलब रिमेंबर करना है. ठीक है, कि DRH तुमको बोलेगा फ्लड हाइड्रोग्राफ दे देगा, बेस फ्लो दे देगा और बोलेगा कि DRH निकालो. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस आर द ग्राफ, राइट. ये एक्चुअली ग्राफ है, ग्राफ मतलब ऑर्डिनेट्स, राइट, XY ऑर्डिनेट्स जो भी है वो तुमको दे देगा. फर्स्ट फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स दे दिया है, ठीक है, बेस फ्लो दे दिया, अब बोलेगा कि DRH का ऑर्डिनेट्स निकालो. हेलो मैम. हेलो.
শোনা যাচ্ছে? না, শোনা যাচ্ছে না তো। সেটাই তো, মেমোরি লিক করে গেছে। বাকিরা শুনতে পাচ্ছিস? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ম্যামের কথা শুনতে পাচ্ছিস? ম্যামের কথা শুনতে পাচ্ছি না। সেটাই তো, ম্যাম লিক করলো, এই চলে কারেন্ট ফারেন্ট চলে গেছে মনে হয়। ম্যাম বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ম্যাম বেরিয়ে গেছে। গ্রুপ চেক কর, ম্যাম কি লিখছে। ম্যাম বলছে নেট চলে গেছে। হুম, তা আমি বললাম আমরা কি করবো, দেখি কি বলে। তাহলে কি আমরা বেরিয়ে যাব? দেখা যাক কি ইনস্ট্রাকশন আসে। চলো, লিভ করো, লিভ। ওকে, গুড বাই।
हेलो 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 मैम। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग। अच्छा कहाँ तक हुआ था? मैम স্লাইড গুলো শো করুন একবার। ओह सॉरी सॉरी ওকে, तो কত দূর হয়েছিল, कहाँ तक हुआ था? See, this is what this is your rising limb. Okay, see here. As I said, there will be two type of the hydrograph: flood hydrograph, and using the flood hydrograph we have to determine the direct runoff hydrograph. Okay, so this red portion, see the area under this curve, the total area including the base flow also is the D hour flood hydrograph. D hour means how much, what is the duration of the rainfall for which we are drawing this graph. Okay, so we have to mention that hour also, that in duration of that rainfall also. So if area area ম্যাম hydrograph, ভয়েস ব্রেক করছে, শোনা যাচ্ছে hello না। hello, audible? ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম। So if we subtract this base flow area with the total hydrograph, we will get what? DRH. Okay. So DRH is the direct runoff. So the total, the volume within this, the volume or the area under this curve, total area under this curve including the base flow is what we will get. We will get the volume of the rainfall, total volume of the rainfall. Okay, and if we subtract the base flow with that total area, then what we will get? We will get the volume of the direct runoff. Okay, and the graph which is this showing, which covers this area is the direct runoff hydrograph. Okay, so let us see one video. ম্যাম ভয়েস তো আসছে না, আপনি কি বলছেন ম্যাম? হ্যালো, Audio, okay, only hello. আপনার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছিল না। হ্যালো ম্যাম। Just wait, just watch that video. Okay, no need of the sound. Okay, मतलब শুধু ওকে তোমরা ম্যাম। শুধু দেখো, ওই জিনিসটা দেখবে. Okay, so I'm playing. See, it's raining.
Yes. শোনা যাচ্ছিল না ম্যাম কিছু। So did you saw the video? No need of audio. Yes, ma'am. Actually what happened with the rainfall in this time in the यहाँ पे क्या दिखा रहा था, एक ग्राफ दिखा रहा था कि जैसे ये बढ़ रहा है. ओके, how it was moving. तुम्हारा फ्लो इस तरफ देखना, इस तरफ में फ्लो दे रहा था, तो फ्लो बढ़ रहा है. तुम्हारा ये ग्राफ भी देखो स्लोली बढ़ रहा है. ओके, बट बारिश कब खत्म हुआ, बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन तुम्हारा फ्लो फिर भी जा रहा था, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रन ऑफ ओनली. ठीक है. सो इन दैट वे वी आर कैलकुलेटिंग दिस डिस्चार्ज वर्सेस टाइम एंड प्लॉटिंग द ग्राफ. ओके, तो जैसे वो जैसे जा रहा था ना, येलो कलर का जो मार्क जा रहा था, दैट इज नथिंग बट द फ्लो जैसे जैसे बढ़ रहा है एक टाइम तक बढ़ेगा, फिर जाके वो घटता होके यहाँ पे फ्लो बंद हो जा रहा है. ठीक है, बट ड्यूरेशन बारिश कब का रुक चुका था, लेकिन फ्लो कंटिन्यू हो रहा था. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्टिंग डाटा एंड प्लॉटिंग द ग्राफ. ओके, सो हाइड्रो तो वही है फंडा. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम. कि क्या है प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे दिया देखो, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ आर. क्या क्या दिया है, ये क्या है, दिस इज दी 2 आवर, मतलब डी आवर इज व्हाट, 2 आवर्स फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 5 सेंटीमीटर इन, जो तुम्हारा डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है. ठीक है, एंड दीज आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ. मतलब देखो 1 घंटे में डिस्चार्ज कितना होगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ का डिस्चार्ज कितना है 25, 2 आवर्स में 27, 3 आवर्स में 29. ठीक है, यूजिंग दिस ऑर्डिनेट्स वी नीड टू फाइंड द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड गिवन डाटा क्या है, बेस फ्लो इज 20 क्यूमेक्स. ओके, सो सपोज वी विल प्लॉट दिस ग्राफ. तो ग्राफ हम क्या बोले थे, हाइड्रोग्राफ एक्सिस में रहेगा डिस्चार्ज और एक्स एक्सिस में रहेगा तुम्हारा टाइम. ठीक है, अब देखो प्लॉट करो. एट 1 t इक्वल्स टू 1 तुम्हारा डिस्चार्ज कितना था 25. ठीक है, एट t इक्वल्स टू 2 व्हाट इज द डिस्चार्ज, समथिंग 27. ठीक है, t इक्वल्स टू 3 डिस्चार्ज है 29 एंड t इक्वल्स टू 4 डिस्चार्ज इज योर 28.5 एंड t इक्वल्स टू 5 डिस्चार्ज इज 26, जो कि यहाँ पे दिया गया है. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ प्लॉट करो, ये जो ग्राफ आएगा व्हाट इज दिस, ये ग्राफ क्या है, इज दिस फ्लड हाइड्रोग्राफ और DRH? टोटलটা তো फ्लड हाइड्रोग्राफ. यस, व्हाई, सी इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, राइट. दैट मीन्स व्हाट, एक बेस फ्लो ऑलरेडी है, कितना क्यूमेक्स, 20 क्यूमेक्स. DRH विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कहाँ पे, 0 से स्टार्ट होता है DRH, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से स्टार्ट है, y एक्सिस इज हमारा 20 क्यूमेक्स है. ठीक है, सो ऐसे करके हमको ड्रॉ कर दिया है. एंड द मैक्सिमम, इस वाले से अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्रॉम द फ्लड हाइड्रोग्राफ, सो मैक्सिमम डिस्चार्ज इज 29, विच इटसेल्फ जो मैक्सिमम है वही तुम्हारा यहाँ पे है. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग यू टू डिटरमाइन द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, हम क्या बोले थे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ से क्या माइनस करना पड़ेगा, बेस फ्लो माइनस करना है, राइट. जो ग्राउंड वाटर जो था उसको माइनस कर देना है, तभी हम लोग को डायरेक्ट रन ऑफ आएगा. तो डायरेक्ट रन ऑफ का ग्राफ है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. ठीक है, नाउ सबट्रैक्ट ईच कोऑर्डिनेट विद दिस बेस फ्लो. जैसे कि है तुम्हारा, देखो ये तो क्वेश्चन में दिया है, अब बेस फ्लो इज 20, सबट्रैक्ट कर दो, तो 25 माइनस 20 इज गिविंग यू 5, 27 माइनस 27. ठीक है, ऐसे करके हमको निकालना है. एंड जस्ट प्लॉट दिस इन द सेम वे जैसे प्रीवियसली किया था. ठीक है, सेम वे में अगर हम प्लॉट करेंगे, सो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ द ग्राफ. एंड दिस ग्राफ इज योर, जैसे देखो फर्स्ट है तो फर्स्ट में 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 8.5, फिर 6. तो प्लॉट करोगे तो दिस ग्राफ इज नथिंग बट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. एंड द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का QP or the maximum discharge is 9 cumex. Okay, so in this way you can plot the hydrograph, you can derive the direct run of hydrograph,
Okay, and also the coordinates or the ordinates of the direct runoff hydrograph can be derived by simply subtracting the ordinates of FH, that is the flood hydrograph, minus base flow. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, इस वाले में बेस फ्लो इंक्लूड था, ये वाला ग्राफ में देखो बेस फ्लो भी आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बेस फ्लो को उड़ा के सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हम लिए हैं, जिसका ऑर्डिनेट्स क्या क्या है, इसका है 5, इसका है 7, इसका है 9, 8.5, 6. तो नया ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज दिस वन. ओके, সো আচ্ছা এখন কি ব্রেক নেবে? Then I will continue the lecture in the after 12 at 12. बोलो. ঠিক আছে ম্যাম। Should I continue or should I give a break? যা ভালো বুঝবেন ম্যাম।